IBN 7 हौसला है। पहले आपको बता दें, क्वेश्चन आवर सस्पेंशन का नोटिस जो है कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जबरदस्त हंगामा इस वक्त राज्यसभा में। If all of you stand up and shout, जबरदस्त तरीके से what can I do? I cannot राज्यसभा में understand जबरदस्त anything. तरीके से हंगामा हो रहा है। साध्वी निरंजन ज्योति के मामले को लेकर इस मामले को जोर शोर से उठाने की कांग्रेस ने तैयारी की है। राज्यसभा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जबरदस्त हंगामा वहां हो रहा है। तो आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। साध्वी निरंजन ज्योति को लेकर इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं राज्यसभा की। Please take your seat. No, please. No, please take your seat. Please resume your seat. Mr. Ashwani Kumar. Mr. Ashwani Kumar, go to your seat. Mr. Mistry, take your seat. Please. No, please take your seat. This is indiscipline. Please take your seat. Ashwani Kumar ji, please go to your seat. Malmali Khan. Let me understand. I have not understood anything. All of you are shouting. I have not understood anything. All of you are shouting. If one of you can stand up and say, I can understand. If this is not the way, I have not understood anything. What is your problem? Yes. Mr. Anand Sharma, what is your problem? What is your problem? Yes. What is your problem? No. Yes. No, let me. Sir. What is the problem? I don't know. Sir, एक मिनट. Okay. Sir, They are only shouting. They are not telling. What can I do? no, sir. How can I listen to so many people? How can I listen to so many people? I can listen to one or two. ठीक है, बैठ जाओ भाई. बैठा दीजिए. I am also human being, only 2 years. I don't have so many years. Sir. Only Ravana was having 10 heads and 20 years. Sir. Not me. बताइए ना इसको. Let me listen to him. First I will allow you that. Ashwani Kumar, I called Mr. Anand Sharma. Yes, he has. एक मिनट. This is not a... माननीय What is your सभापति problem? महोदय, सरकार से, सरकार के मंत्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे. उनका व्यवहार हमारी राजनीति में, प्रजातंत्र में मर्यादापूर्ण होगा. कई बार मौजूदा सरकार के मंत्रियों ने अश्लील भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है. कल 2 मंत्रियों ने इनके अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, गाली दी है. Did they use in the ऐसे house? मंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए. ऐसे मंत्री सरकार में रहने योग्य नहीं हैं. Did they use देश के प्रधानमंत्री, indecent language in the house? प्रधानमंत्री संसद का अपमान करते हैं, कभी संसद में नहीं आते. No, सुनिए. दिल्ली से बाहर, देश से बाहर No. संसद चल रही होती है. कहाँ है प्रधानमंत्री? Mr. Anand Sharma, did they use in the हम house? ये जवाब चाहते हैं आज. I don't know. हम Yes. ये जवाब चाहते हैं. Okay. Yes. No, Whether any minister has used indecent language in this house, then I will take note of that. Sir, can I say something, Yeah. sir? Sir, what I am saying is, you are right. You are right. If anybody uses indecent language in the house, I will we take- can take it up. Yeah. But if ministers, union ministers, speak in indecent language outside the house, Then you have to see it. It is your job, not my job. no, then. sir, Not my job. Sir, my point is, forget, sir, my point is, forget bringing black money from abroad, bring a prime minister from abroad. Sir, please bring him here. Please.
Sir, please bring him here. We want to ask him, how are these ministers now members of his cabinet? How can I take? Sir, The point is... what the ministers have said is very serious. Please put on your mic. I'll tell you what they have said. कि रामजादे रहेंगे या हरामजादे रहेंगे राजनीति में. This is a very serious, I got your point. Which is a very serious allegation, now I understood and the point. that is something that cannot be accepted. I got it. See, now please. Okay. No. Yeah. Zero hour is going to be the casualty. I can tell you. ये इतना महत्वपूर्ण मामला है श्रीमान. एक मंत्री देश की जनता के बड़े हिस्से के लिए अगर असंसदीय और अभद्र भाषा का प्रयोग करे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता. मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड, कि आदम गोंडमी साहब ने इसीलिए कहा था कि ये हमारी गरीबी से हमारी फैसलाकुन जंग थी. बीच में कहां से मस्जिद और मंदिर आ गए, जिनके माथे पर खिंची थी जेल की लंबी फसील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए. जिन्हें जेल में जाना चाहिए था वो संसद में आ गए और इस तरह के बयान देते हैं. इन्हें इस्तीफा देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए और किसी सीनियर मिनिस्टर को चाहिए कि देश की जनता से माफी मांगे. Okay. Ashwani Kumar, yes. माफी मांगे. You have given notice. सर, इसलिए मैंने कहा था, कालाधन की बात छोड़िए, प्रधानमंत्री मैंने नोटिस दिया है, मेरा अधिकार है अपनी बात कहने का. आज आपने 72% लोगों को हरामजादा कह के पुकारा है. क्या ऐसी अश्लील भाषा देश के पार्लियामेंट्री इतिहास में पहले कभी इस्तेमाल की गई थी? कब तक बर्दाश्त करेंगे हम? कब तक देश आहत होगा? कब तक विभाजन क्यों चलेंगे? हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे. सरकार इस्तीफा दे, मंत्री इस्तीफा दे, जवाब दे. आप अपने जवाब देने से भाग नहीं सकते. ये राजनीति का सवाल नहीं, ये देश के लोगों की मान और मर्यादा का सवाल है. आप हमें रोकिए मत, आज हमें रोकिए मत, क्योंकि आज इनकलाब आने वाला है. देश के लोग पीड़ित हैं. आप हमारी बात कहने नहीं दीजिए. देश के बाहर ये बात जानी चाहिए. मैंने अपनी बात को कभी ऐसे मैं ये कह रहा हूँ कि हम गाली खाने के लिए राजनीति में नहीं आए. हम देश में Ashwani Kumar करने के लिए not going on record. That is enough. आप not going on record. You should know the rules. Now, honorable members, see, I agree that the ministers of government in India, or for that matter of a state, should use only decent language. I agree with that. But if a minister has said something indecent or otherwise outside, the chair can take cognizance only if it is uttered in this house. Now please, you don't allow me to complete. Let me complete. You know the rules. I have not completed. नरेश, मेरा बात पूरा करने दीजिए. मेरे को पूरा बोलने दीजिए. Allow me please to complete. Now please, the point I am only saying the position of the rule. See, when you raise a matter like this, the chair can take cognizance only if it is uttered in the house. But there are provisions in the rule by which you can take up such issues. You do that. I have no problem. No, but now the matter is over. Now the matter is over. That's all. You go by the rules and do whatever you want. Now 0 over. TNC ma. I've gone to 0. What is the read? On this issue over. You will give notice.
On what? What is the, I am not saying, see, now, Begin ji, now suniye, Begin ji, now, I am not saying, no, I am, no, suniye, now listen. Issue is, and my request to you on this issue is to please grant a visa to the Prime Minister of India to come to Rajya Sabha. That is the issue. You have to grant him a visa. There are rules. Grant him a visa. There are rules. See, now, ठीक है. से बहन जी, यही बात, इसके बारे में मैं क्या करूं? नोटिस देना पड़ेगा. सर ये 0 आवर है और आपने 0 आवर में जितने भी मुद्दे और जितने भी विषय लोगों ने रखे हैं, कृपया उसको आप पहले बात तो स्पंज करें, क्योंकि आपने अलाउ नहीं किया था और वो रिकॉर्ड में आया है, और वो बिल्कुल रिकॉर्ड में आया है. और जो नियम है, रूल के हिसाब से अगर उनको किसी मंत्री के आचरण पर चर्चा करनी है 238A उसके तहत चर्चा होगी सर. और मंत्री के आचरण पर अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नोटिस देने के बाद चर्चा करने को तैयार है. इनके मंत्रियों का क्या चल रहा है, इनके मंत्री किस तरह की भाषा बोलते रहे, किस रूप में बात करते रहे, इतिहास और भूगोल बताने की जरूरत है क्या? No, okay. Kumari Mayawati. Yes, Kumari Mayawati. Please. माननीय उपसभापति जी. Is it on this same subject? Yagi? माननीय उपसभापति जी, सेंटर की सरकार में एक महिला मंत्री द्वारा जिस तरीके की अभद्र भाषा का इस्तेमाल विपक्ष को लेकर किया गया है, ये बहुत ही निंदनीय है. और इसके साथ साथ खास तौर से जो उन्होंने ये कहा है कि पूरे देश के लोग वो राम के भक्त हैं, उनको राम की औलाद मान के चलना चाहिए. मैं समझती हूँ कि जो हमारा देश का जो संविधान है तो वो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हुआ है, तो हमें सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए. और उन्होंने ये जो लैंग्वेज इस्तेमाल की है तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने हमारा जो भारतीय संविधान जो धर्मनिरपेक्षता के आधार पर बना हुआ उसके ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है. और इतना ही नहीं कि जब किसी भी पार्टी की सरकार बनती है सेंटर में, और सरकार बनने के बाद जब मंत्री ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो वो भारतीय संविधान की शपथ लेते हैं. लेकिन मंत्री पद के ऊपर बैठकर भारतीय संविधान के खिलाफ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है तो मैं समझती हूँ ये ठीक नहीं है. केंद्र की सरकार को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनसे इस्तीफा लेना चाहिए. और यदि वो इस्तीफा नहीं देती है तो केंद्र की सरकार को चाहिए कि उनको बर्खास्त करना चाहिए. और इतना ही नहीं, ये मामला बहुत गंभीर है. उन्होंने जिस तरीके की विभिन्न बिंदुओं को लेकर, विभिन्न मुद्दों को लेकर जो उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है और भी कई मुद्दों पर बोला, उससे ऐसा लगता है कि उनको इतिहास की जानकारी नहीं है. इसलिए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए और इनके ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. डॉक्टर TN Seema, 0 hour. थैंक यू सर. सर मैं क्या करता? What can I do? What can I do? It's for the government. What can I do? Sir, the least we demand is an
आपके संस्कार को तो देख लिया पूरी दुनिया में। एकदम छुप के जो समझ में आता हुआ बोलते रहते हैं। आपके मंत्रियों ने कौन सी Now, Mr. Minister, please listen to the minister. Please listen to the minister. उपसभापति महोदय, No, please. उपसभापति Listen to the महोदय, minister. सदन में जिस मुद्दे को लेकर के Listen to चर्चा the हो रही minister. है, Why don't you जिस listen to बयान the को लेकर minister? चर्चा हो रही है, निश्चित तौर से उस बयान पर चर्चा करने के लिए Anyhow, please listen to the minister. Let us hear what he has to सदन say. के नियम है No, और उस व्यवस्था के see, तहत उस पर चर्चा हो The सकती है। हम courtesy उससे demands सहमत that हैं। you should listen जहां to the तक सवाल minister. है आदरणीय मायावती जी का, जहां तक सवाल है और जो माननीय सदस्यों का, हम बिल्कुल इस बात से सहमत हैं कि शब्दों की शालीनता का सम्मान होना चाहिए और शब्दों की शालीनता का सम्मान केवल इधर से नहीं बल्कि उधर से भी होना चाहिए, क्योंकि शब्दों की शालीनता तार तार करने का काम कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों ने बहुत बार किया है और कभी उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि उन्होंने इस तरह की बात करी है। एक चीज। दूसरी चीज, उपसभापति महोदय, हम कभी भी ऐसी भाषा के से सहमत नहीं है। हम ऐसी भाषा को कभी भी जस्टिफाई नहीं करते, चाहे कहीं से भी की जा रही हो। धन्यवाद। एक निवेदन है कि कृपा करके देश के प्रधानमंत्री को आग्रह करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को सदन में लाएं, बुलाएं उनको सदन में। वो आए नहीं कभी सदन में, हमको चिंता है कहां हैं। नहीं देखा, वो आए हैं, आपने देखा नहीं। आनंद शर्मा जी आप देख नहीं पाए, आपकी नजरों का फर्क है। वो आए हैं, House is adjourned for 10 minutes. House is adjourned for 10 minutes. तो आपको बता दें, जबरदस्त हंगामे के बीच राज्यसभा जो है 10 मिनट के लिए एडजर्न की गई है। उसके अलावा लोकसभा से भी जो जानकारी मिल रही है उसको भी एडजर्न किया गया। जबरदस्त हंगामा राज्यसभा में तमाम विपक्षी दलों के सांसदों ने किया। मायावती ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उच्च स्तरीय इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि हमने देखा मुख्तार अब्बास नकवी ने बीजेपी की तरफ से यह कहा कि शब्दों की शालीनता का सम्मान होना चाहिए, हम ऐसी भाषा को जस्टिफाई नहीं करते, लेकिन तमाम सांसद मानने को तैयार नहीं थे। उनका यह कहना था कि मंत्री जो है इस्तीफा दें। यहां तक कि प्रधानमंत्री के लिए कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री को ऐसे वक्त पर यहां होना चाहिए, लेकिन वो दिल्ली में नहीं है, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं है, और ये पार्लियामेंट का एक तरह से अपमान है। यानी तमाम तरीके से हंगामा इस वक्त तमाम विपक्षी दलों ने किया राज्यसभा के अंदर। और 11:39 तक के लिए राज्यसभा जो है फिलहाल सदन की कार्रवाई वहां स्थगित कर दी गई है। उसके अलावा लोकसभा में भी आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है, लोकसभा में भी कुछ देर के लिए एडजर्न हुई है। लोकसभा भी समाजवादी पार्टी की तरफ से इस्तीफे की बात हुई मंत्री निरंजन ज्योति की। उसके अलावा मायावती ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो और साथ ही साथ उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और तमाम राजनीतिक दलों ने क्या कुछ कहा, आइए एक बार सुनते हैं। सरकार से, सरकार के मंत्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वो सभ्य भाषा का प्रयोग करेंगे, उनका व्यवहार हमारी राजनीति में, प्रजातंत्र में मर्यादापूर्ण होगा। कई बार मौजूदा सरकार के मंत्रियों ने अश्लील भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। कल 2 मंत्रियों ने इनके अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, गाली दी है। Did they use in the house? मंत्रियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए।
ऐसे मंत्री सरकार में रहने योग्य नहीं हैं। Did they use देश के प्रधानमंत्री indecent language in the house? प्रधानमंत्री संसद का अपमान करते हैं, कभी संसद में नहीं आते। No, सुनिए। दिल्ली से बाहर, देश से बाहर No. संसद चल रही होती है, कहाँ है प्रधानमंत्री? Mr. Rajesh Sharma, जानना चाहते did हैं। they use in the हम ये house? जवाब चाहते हैं आज। I don't know. Yes. हम ये जवाब चाहते हैं। Okay. एक मंत्री देश की जनता के बड़े हिस्से के लिए अगर असंसदीय और अभद्र भाषा का प्रयोग करे, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लगता है, एक सेकंड, कि आदम गोंडवी साहब ने इसीलिए कहा था कि ये हमारी गरीबी से हमारी फैसला कुन जंग थी। बीच में कहां से मस्जिद और मंदिर आ गए, जिनके माथे पर खिंची थी जेल की लंबी फसील, राम नामी ओढ़कर संसद के अंदर आ गए। जिन्हें जेल में जाना चाहिए था वो संसद में आ गए और इस तरह के बयान देते हैं। इन्हें इस्तीफा देना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर को चाहिए और किसी सीनियर मिनिस्टर को चाहिए कि देश की जनता से माफी मांगे। ओके, अश्विनी कुमार, माफी मांगे। अश्विनी। Sir, what I am saying is, you're right. You're right. If anybody uses indecent language in the house, we can take it up. Yeah. But if ministers, union ministers, speak in indecent language outside the house, Then you have to see it. It is your job, not my job. no, then. sir. Not my job. Sir, my point is, forget, sir. My point is, forget bringing black money from abroad. Bring a prime minister from abroad. Sir, please bring him here. Please. Sir, please bring him here. We want to ask him, how are these ministers now members of his cabinet? How can I take? Sir, The point is, what the ministers have said is very serious. Please put on your mic. I'll tell you what they have said. कि रामजादे रहेंगे या हरामजादे रहेंगे राजनीति में. This is a very serious, I got your point. It is a very serious allegation, now I understood and the point. that is something that cannot be accepted. I got it. See, now please. मंत्री के आचरण पर अगर चर्चा करना चाहते हैं तो नोटिस देने के बाद चर्चा करने को तैयार है. इनके मंत्रियों का क्या चल रहा है, इनके मंत्री किस तरह की भाषा बोलते रहे, किस रूप में बात करते रहे, इतिहास और भूगोल बताने की जरूरत है क्या?